So any value is going to be between 0 and 1. Secondly, it's a monotonically increasing function. So आपके पास जब भी दो values हैं, so it's going to be a and fx of b. ठीक है, तो आपका CDF it's an increasing function. और वही again जो हम लोगों ने उसके लिए की थी कि आपके पास सबसे smallest value is going to be 0 and the largest is going to be on the highest it's going to be 1. So limit x tends to infinity, f of x this is equals to 1, and limit x tends to minus infinity, fx of x is equals to 0. ठीक है, और thirdly I talked about कि अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू की बात करती हूँ, probability x is equals to a is more of के I'm talking about probability of x between a and a, this is 0. ठीक है, आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रिप. सो जब हम स्ट्रिप की बात करते हैं, इट्स मोर ऑफ probability x अगर a minus epsilon by 2 and a plus epsilon by 2. ठीक है, so अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो from a minus epsilon by 2 to a plus epsilon by 2, और हम PDF के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, into d of x. Now this is like area under the curve of the strip. ठीक है, आपके पास the width of the strip is epsilon, और जो इसकी height है वो represent कर रही है आपके पास उसकी probability value. ठीक है, so this is approximately, तो अगर it's एक rectangle बन गया, rectangle का आपके पास area under the curve is epsilon into fx of a. ठीक है, तो आपके पास ये value आ जाती है. ठीक है, lastly अगर आपने compute करना है, हम लोगों ने compute की थी probability. I said कि probability अगर आप compute कर रहे हो between A and B, we represented it कि आप उसको integrate कर सकते हो, आप area under the curve compute कर सकते हो उन दोनों points के बीच में. ठीक है, so अब आप इसी same concept को, इसी same point को compute कर सकते हो using CDF. ठीक है, so it's more of ये represent कर रहा है आपके पास CDF up till point B minus CDF of A. ठीक है, CDF of point B में it's more of कि आप कैलकुलेट करो माइनस इन्फिनिटी से पॉइंट B तक का एरिया, और CDF of A के अंदर आप कंप्यूट कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी से A तक का एरिया. So intuitively it makes sense कि B तक के एरिया में से आपने A तक के एरिया को माइनस कर दे तो you'll be left with the area between A and B. ठीक है, next is आप you can compute the expected values. हमने expected value को जब discrete में किया था it was summation. यहाँ पे so we have expected value of x, this is we have integration. ठीक है, value जिसके लिए आप compute करना चाह रहे हो x into fx of x into d of x. ठीक है, similarly you can compute the variance for it. Minus infinity to plus infinity, x minus the mean value, expected value of x whole square into fx of x into d of x. ठीक है, हाँ जी, all good. So okay, now we have certain standard जैसे हमारे पास discrete random variables defined है, उसी तरह से हमारे पास certain standard distributions defined है continuous के लिए भी. ठीक है, continuous के केस में आपको continuous और discrete की expected value और उन सब के differences समझ आ गए हैं. ठीक है, so we'll talk about only two continuous के केस के लिए. The first one is uniform distribution. Uniform distribution में let's say I have a point A and B, all points are equally probable. So मेरे पास इस तरह से इसका plot आता है हमेशा. Last time जब हमने discrete के केस में discrete में भी uniform है तो हमने इस तरह से किया था. ठीक है, like ये discrete values possible. यहाँ पे like all values between A and B are possible, और this is going to be 1 over B minus A. ठीक है, क्योंकि okay, it's a rectangle. अब rectangle का area
जब आप कंप्यूट करो एरिया अंडर द कर्व, दैट मींस फ्रॉम ए टू बी, जब आपने कंप्यूट करना है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो द एरिया अंडर द कर्व इज 1, दिस इज, अब मैं अगर रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करूं, इट्स लेंथ एंड विड्थ, राइट, दिस इज b minus a, 1 b minus a into a height of it is equals to 1. So what is the height of it's going to be? 1 over b minus a. Okay, this is how we got this. Okay, this is your uniform distribution. Next is another very popular distribution called Gaussian random variable. ठीक है, एक Poisson random variable बहुत ज़्यादा commonly used होता है, second Gaussian random variable बहुत ज़्यादा commonly used होता है, especially in wireless communication. Gaussian और unsignal processing as well, ठीक है, as Gaussian noise आपके पास हर जगह add हो रही होती है, ठीक है। और for Gaussian random variable, it's more of कि आपके पास the PDF of it's going to be like a bell-shaped curve. और हम इसको represent करते हैं, इसके लिए n random variable, so it's f n of small n, f n of n, ठीक है। और your Gaussian random variable is defined by two parameters, mean and standard deviation आप कहना चाहो या आप स्क्वायर करके इसको call it variance, ठीक है। So the PDF of your Gaussian random variable is 1 by sigma into 2 pi into exponential of 1 by 2 into x minus mu divided by sigma whole square, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में भी देखो, इट्स मोर ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आता है। एंड व्हेन वी से इट्स अ जीरो मीन यूनिट वेरिएंस प्रोसेस, देन दैट मींस n 0 and 1, दिस इज कॉल्ड, जब मीन 0 है और यूनिट वेरिएंस है, वेरिएंस 1 है, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ठीक है। ओके, सो आपके पास जब आप इसके पीडीएफ को प्लॉट करते हो, इट्स लाइक अ बेल शेप्ड कर्व, और जैसे ये वन बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। अब दिस इज सेंटर्ड अराउंड योर मीन वैल्यू, और उसके बाद दिस लाइक अ सर्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व्ड, जहां पे भी आपके पास अगर ये इस तरह से है, सो दिस हैज मोर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस हैज लेस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हाँ जी, सो यू कैन कंप्यूट द सीडीएफ ऑफ इट। सीडीएफ कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। सो आई कैन इंटीग्रेट माय पीडीएफ, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पीडीएफ की डायरेक्टली प्लग इन कर देती हूँ, 2 पाई from minus infinity up till a certain point x 1 by 2 into x bar minus mu divided by sigma whole square into d of x bar, ठीक है। तो अब आप इसको आप इस तरह से कंप्यूट कर सकते हो, बट नाउ द थिंग इज कि इसके लिए दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इंटीग्रेशन कैन नॉट बी कंप्यूटेड एनालिटिकली, ठीक है। इसके लिए देयर डिफरेंट टेबल्स जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली वी यूज a Q table to compute it. ठीक है, so उसकी इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल है आपके पास, सॉरी, विदाउट टेबल्स पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। सो हम इसके लिए so we express this as what we say is my CDF is phi of x, and phi of x is 1 minus q of x. Q table आपके पास the book I mentioned उसमें आपके पास अपेंडिक्स के अंदर अटैच्ड है।
ठीक है, हाँ जी, ऑल गुड. Okay, so now Gaussian distribution. If this is centered around mean, so ये आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है. So what we say is इसकी 99.7% values वो आपके पास 3 standard deviation. This is your, let's say this 1 standard deviation, this is 2nd standard deviation, and this is my 3rd. That means 3 standard deviations. ठीक है, 1, 2 standard deviation, 2 standard deviation. So 3 standard deviations में वो बिल्कुल आपके पास 3 standard deviation के एरिया के अंदर आपके पास 99.7% एरिया प्रेजेंट होगा. हाँ जी. So this is what we have for today. अब मुझे बताओ any questions. So what you can do is so okay, we have covered a lot today. So what you can do is try different example questions from the book. ठीक है, book के अंदर just open discrete random variable and continuous random variable. और आपके पास जब आप इस पहले इस लेक्चर को देख लो, लेक्चर को देखने के बाद बुक में से उसको रीड करो and just solve the examples in it. ठीक है, so I'll just stop here. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं. मैम ये कुछ जो रिलेशन है हमने मतलब फार्मूले डायरेक्ट लिख दिए, तो हाँ जी. इसकी डेरिवेशन से रिलेटेड कोई फाइल हो तो वो शेयर कर दे करेंगे. ओके, जैसे हमने मतलब बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल है ना, ठीक है, इस बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल के हमने पीडीएफ उसको अंडरस्टैंड किया था इंट्यूटिवली वो किस तरह से बिल्ड हुआ है, ठीक है. जी. और सेकेंडली हमने उसके बाद किया था पॉइजन रैंडम वेरिएबल. पॉइजन रैंडम वेरिएबल बिल्ड हुआ है ऑन टॉप ऑफ बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है. हमने उस एक्सप्रेशन को भी देखा तो वो कैसे आया आपके पास, ठीक है. द ओनली एक्सप्रेशन जो मैंने आपको डायरेक्टली प्लेसन किया है इज गॉसियन रैंडम वेरिएबल. यस मैम. हाँ जी, ठीक है. सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल की डेरिवेशन आप चाहते हो कि इस ठीक है, मैं इसका कोई डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है मैम. हाँ जी, इसमें ना यही लाइक एक्सप्रेशन. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स डिफाइंड बाय अ मीन एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. इस एक्सप्रेशन के अंदर दिस इज योर मीन वैल्यू, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. जी मैम. ठीक है, और इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि आपके पास एक बेल शेप्ड कर्व है, उस बेल शेप्ड कर्व को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है मैम. ठीक है. ठीक. हाँ जी, कोई और कंफ्यूजन? इसको जब आप बुक से रीड करोगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर. कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करोगे तो मैं बता सकती हूँ आपको कि क्या लाइक व्हाट एल्स यू वांट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ठीक है मैम. हाँ जी. सो इस कोर्स में दिस इज द ओनली प्रोबेबिलिटी विल टॉक अबाउट. हाँ जी मैम सादिया. मैम सादिया. जी जी, ठीक है, फिर यहाँ रोक देते हैं. थैंक यू सो मच. और अब स्टूडेंट्स जो है वो करेंगे जिस तरह आपने एग्जाम्पल्स करेंगे. जी हमजा. रैयान हमजा दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे. वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हो आप? ठीक हो.